جی، میں آفتاب رشک مصباحی ایک مرتبہ پھر آپ کی بزم محبت میں حاضر ہیں۔ آپ نے سہیل عظیم آبادی کا نام سنا ہوگا۔ جی، سہیل عظیم آبادی، معروف اردو افسانہ نگار سہیل عظیم آبادی 1911 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے اور 1980 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سہیل عظیم آبادی، پیدائش کب ہے؟ 1911، اور تاریخ وفات کیا ہے؟ 1980۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام ہے سید مجیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن۔ اب یہ سوال بن سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید ضیاء الرحمن، سید حبیب الرحمن، سید مجیب الرحمن، سید صفت الرحمن وغیرہ وغیرہ، اور بھی کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یا کوئی ضروری نہیں کہ سید اور رحمان ہی کا لاحقہ ہو، اور بھی چینج ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس میں ایک نام رہے گا سید مجیب الرحمن، اور آپ کو چوائس کرنا پڑے گا کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا۔ یہ سب بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں، اور بہت خاص چیزیں ہیں جس پہ ایک طالب علم کو طالب علمی اعتبار سے بھی اور تحقیقی اعتبار سے بھی نظر ہونی چاہیے۔ اور چونکہ آپ کے میٹرک کے سلیبس میں جو درخشاں نامی حصہ دوم آپ کی کتاب 10ویں کلاس میں صوبہ بہار میں چلتی ہے، اس میں یہ شامل ہیں۔ ان کی ایک کہانی، ان کا جو ایک کیا کہتے ہیں مختصر افسانہ جو آپ کی کتاب میں شامل ہے، اس کا عنوان ہے بھابھی جان۔ اس میں رقیہ نامی ایک خاتون ہے، ایک عورت کا کردار ہے، بہت ہی زبردست کردار ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے گا۔ بھابھی جان عنوان سے ان کی کہانی آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ سہیل عظیم آبادی، ان کا نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن۔ کیونکہ ابتدا میں یہ شاعری کرتے تھے اور سہیل تخلص کرتے تھے، عظیم آباد پٹنہ کے تھے، اس لیے اب یہ سید مجیب الرحمن سہیل عظیم آبادی کے بجائے صرف مختصر سے نام سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جی، ان کی پیدائش 1911 میں ہوئی۔ اچھا، ایک اور چیز، یہ غریب گھرانے سے نہیں تھے، بڑے مالدار اور زمیندار خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن کیا کہیے، 1 سال کی عمر تھی چھوٹی سی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس اعتبار سے ان کی پرورش دادی حال کی بجائے نانی حال میں ہوئی۔ ایک معلم کے سرپرستی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی۔ والدہ تھی نہیں جو زیادہ توجہ دیتی، اس لیے زیادہ تعلیم حاصل بھی نہ کر سکے۔ اور پٹنہ ہی میں ان کا دادی حال بھی ہے۔ جی، آبائی وطن شاہ پور بھدول، جو پٹنہ ضلع ہی میں واقع ہے۔ افتاد تباہ، یعنی کسی ایک رخ پہ جمنا نہیں، کسی ایک رخ پہ جماؤ نہیں، افتاد تباہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، ہے نا، افتاد تباہ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ اگرچہ نہایت علمی مراکز، سینٹر آف ایجوکیشن جنہیں کہا جاتا ہے، ایسی جگہوں پہ رہیں جیسے مظفرپور بہار، حیدرآباد، کولکاتہ، یہ سب جگہیں ہیں سینٹر آف ایجوکیشن کہلاتے ہیں، مراکز ہیں تعلیم و تربیت، علم و ہنر، ادب و ثقافت کے مراکز ہیں یہ سب سینٹر۔ جی، وہی مظفرپور جہاں سے میرا بھی تعلق ہے، مظفرپور بہار۔ اگرچہ مظفرپور بہار، حیدرآباد، کولکاتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہا، یعنی وہاں رہے، لیکن افتاد تباہ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، اور پھر اس میں اس طریقے سے بڑھتے چلے گئے کہ مڑ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھا، اور بے شمار افسانے لکھے، یعنی بڑی تعداد میں، بے شمار مطلب ایسا نہیں کہ گنتی ہی نہیں کی جا سکتی، مطلب یہ کہ بڑی تعداد میں افسانے لکھے۔ پھر مزید یہ کہ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی، آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر تبادلہ ہو کر کشمیر چلے گئے، پھر وہاں سے پٹنہ آ گئے، اور جب پٹنہ پہنچ گئے تو پھر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک چیز پہ طبیعت کبھی جمتی نہیں تھی، تو افتاد تباہ
की वजह से मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे जी, रिसाले निकाले और एक रोज़नामचा अखबार साथी का इजरा किया, साथी नाम के अखबार का इजरा किया। सुहेल अज़ीमाबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरबियत व इशाअत में मसरूफ़ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 बरसों तक उर्दू की तरबियत व इशाअत का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफ़सानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए जी। क्या उनके अक्सर व बेशतर अफ़साने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत पर से मुताल्लिक़। ज़मींदार मज़दूरों को किस तरह से सताते हैं, तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, अज़ियतें देते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं, बहुत ज़्यादा काम लेते हैं और बहुत कम पैसा देते हैं, जिसे खून चूस लेना कहते हैं हमारी अवामी ज़बान में, कि खून पसीना चूस लिया और छोड़ दिया। 24 घंटा की ड्यूटी और न के बराबर तनख्वाह, दिन रात खेत में, धूप में, बारिश में, ठंडी में, गर्मी में काम करवा रहे हैं मज़दूरों से ज़मींदार हजरात, और बस सद्दे रमक भर खाना, अब बहुत मुख्तसर सा पैसा। ऐसा महसूस होता है जैसे वो जो मज़दूर आए हैं न उनके बीवी बच्चे हैं, न बाप भाई हैं, न माँ बहन है, न और कोई रिश्तेदारियाँ हैं, न उनके यहाँ किसी का आना जाना है, न उन्हें खुद खाने की ज़रूरत है। बस एक लुक़मा दे दीजिए ज़िंदा रहने के लिए, बस, और काम करवाए जाइए, काम करवाए जाइए, काम करवाए जाइए। फिर ये कि ये सिस्टम सिर्फ ज़मींदारी का नहीं है, बल्कि जो तबक़ा दूसरों को रख करके अपने यहाँ काम करवाता है उसके मिजाज ही ऐसा बना हुआ है कि वो सबको खून चूसने, सबका इस्तेसाल होता है, चाहे वो ज़माना कदीम रहा हो या ज़माना जदीद। जो तबक़ा दूसरों से काम करवाता है, उमूमी सूरत हाल ये ला माशाअल्लाह बहुत सारे लोग अच्छे हैं, हर एतबार से ख़याल रखते हैं, हर एतबार से अपने वर्करों की ज़रूरियात का ख़याल रखते हैं, लेकिन अक्सरियत आज भी ऐसे ही लोगों की है कि वो लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उनकी मजबूरियों का, उनकी कमज़ोरियों का, उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाते हैं और सद्दे रमक भर चीज़ें दे करके उनसे दिन रात काम करवाते रहते हैं। फ़िक्री इस्तेहसाल, ज़हनी इस्तेहसाल, माली इस्तेहसाल, बदनी इस्तेहसाल, हर एतबार से टॉर्चर। तो सुहेल अज़ीमाबादी चूँकि एक ज़मींदार घराने से थे, लेकिन ये ज़मींदारी उन्हें रास ना आई। उन्होंने बहुत करीब से मज़दूरों को देखा, कमज़ोर तबकों को देखा, ज़मींदारों के रवैयों को देखा और उनके दुख दर्द को देखा, तो इनके पूरी ज़हनियत जो बन गई और उसे जो इन्होंने तहरीर का जामा पहनाया वो यही है कि ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक़ की बाज़याफ़्त की कोशिश, और उसी निहत से इनके सारे अफ़साने वजूद में आए। ये मौज़ूआत इनके मुंतखब हो गए जी, ये मौज़ूआत इनके मुंतखब हो गए सुहेल अज़ीमाबादी के। कहते हैं सुहेल अज़ीमाबादी की तख्लीक़ात में उनके 3 अफ़सानवी मजमूए, नंबर 1 4 चेहरे, नंबर 2 अलाव और नंबर 3 आदमी के रूप। 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, और एक नाविल बेजड़ के पौधे, बेजड़ के पौधे। इसके अलावा इन मजमूए के अलावा सुहेल अज़ीमाबादी के 125 की तादाद तक अफ़साने मज़ीद और हैं। मैंने पहले ही एक चीज़ बताई थी कि सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई और वफ़ात कब हुई? 1980 में। अज़ीमाबादी में सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल हुआ। असल नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। पटना में पैदा हुए। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। नानिहाल में परवरिश पाई। उफ्ताद तबाह की वजह से कभी एक जगह जम नहीं पाए, कभी एक चीज़ में कमा हक़्क़हू दिल न लगा सके, दिमाग न लगा सके, इसकी वजह से वो आला तालीम हासिल न कर सके। अगरचे आला तालीम के बेहतरीन मराकिज़, जो सेंटर ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर बिहार, हैदराबाद दक्कन, कोलकाता,
इन सब जगहों पे रहे लेकिन आला तालीम हासिल नहीं कर सके। इब्तिदाअन शायरी की, सोहेल तखल्लुस करते थे, अज़ीमाबाद के थे, इसलिए सोहेल अज़ीमाबादी ही के नाम से मशहूर हो गए। बहुत सारे लोगों को तो आज इनका असल नाम भी याद नहीं है, सैयद मुजीबुर रहमान, लेकिन आप याद रखिएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन में बैठना है, उर्दू की खिदमत करनी है, उर्दू में आला नंबर लाना है, बल्कि हर सब्जेक्ट में जो आप पढ़ रहे हैं आला नंबर लाएं, मेहनत करें और लोगों की ज़रूरत बने इन बुनियादों पर। तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से, हर एतबार से आप लोगों की ज़रूरत बने। आप मोहताज ना हो, लोग आपसे इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें, ऐसा बने आप, और आप सिखाएं लोगों को। ये सदक़ा जारिया एक बड़ा काम है और बड़ा इल्मी काम है, बड़ा समाजी काम है, बड़ा दीनी काम है जी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा और अच्छी तैयारी करें। इनकी कहानी जो इनका जो अफसानचा है, मुख्तसर अफसाना, जो आपके सिलेबस की किताब दरख्शां हिस्सा 2 में शामिल है, उसका उन्वान क्या है? भाभी जान। भाभी जान के हैसियत से जो औरत एक नुमाया किरदार अदा कर रही है इस कहानी में, उस खातून का नाम इन्होंने जो बयान किया वो क्या है? रुक़ैया। रुक़ैया। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। मज़ीद और भी चीज़ें हैं जो आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे उससे भी सवालात बनेंगे, लेकिन ये जो मुख्तसर सी गुफ्तगू है इससे भी 2-3 सवालात बन सकते हैं, बनते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में। फिर जब आप इंटर में जाइएगा तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेजुएशन में पढ़िएगा उसमें ज़रूरत पड़ेगी, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इन चीज़ों को आप याद रखें। तो फिर अब हमें इजाज़त दें, हम आपसे रुखसत होते हैं। आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों लोगों तक पहुँचाएँ ताकि अच्छी बातें कम वक्त में आप तक पहुँचती रहे। और मज़ीद किस तरह की चीज़ों को आपको ज़रूरत है वो भी कमेंट में करें ताकि हम आपकी ज़रूरत के एतबार से वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।